Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, 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 glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. 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 Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord God Almighty, for everything. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Glory to God. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. God is good, God. And He is good all the time. His mercy endureth forever, the word of God says. His agape love is always upon us. His agape love is always for us, remain same. आपके और मेरे लिए एक समान है सदा के लिए. He has promised us उसने हमसे प्रतिज्ञा की है that He will never leave us nor forsake us. वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा. He is so kind and loving God. वो महान परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयालु और प्रेमी है. Always ready to embrace us and to receive us. हमेशा वो तैयार रहता है कि हमें गले लगाए, हमसे प्रेम. He remains faithful, dear people of God. मेरे प्रियो परमेश्वर सदा के लिए विश्वास योग्य ठहरा है. Yes, God, the Father, the creator of heavens and the earth and every seen and unseen things in it. हर एक इन बातों का रचने वाला जो देखी और अनदेखी है, स्वर्गों में, पृथ्वी में, समुद्र में, उसके नीचे भी. He remains faithful. खुदावन विश्वास योग्य है. He is faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. And because He is faithful God, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, that's why His promises are irrevocable. और इसीलिए उसकी प्रतिज्ञाएं कभी मिटने की नहीं. Always stands firm. और उसकी प्रतिज्ञाएं सदा दृढ़ हैं. Hallelujah. Hallelujah. These are the blessed assurance that we have as children of God. मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर के द्वारा दी गई वो धन्य आशा है जो आपने और मैंने यीशु मसीह में होकर पाई. Yes, the day one accepts Jesus Christ as his or her personal Lord and Savior, जिस दिन भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करता है and confess all his or her sin before और him, अपने पापों को उसके सामने मान लेता है, and accept him and give him full authority over his or her life, और अपने जीवन के उसके हाथों में समर्पित करके उसका ही अधिकार अपने जीवन में होने देता है. you know, the Bible says बाइबल बताती है exactly at that time, that moment, उसी क्षण से मेरे प्रियो he or she becomes the children or child of God. वो प्रिय वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है. Yes, exactly the moment he or she receives Christ Jesus as his or her personal Lord and Savior, जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, he or she becomes, the child of God the वो Father. व्यक्ति प्रभु की संतान, परमेश्वर की संतान बन जाता And है. this is what even the Word of God says. ये परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है. John chapter 1 and John chapter 1 verse 12, when you read, जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 12, and here the scripture और says, यहाँ पर कलाम यूं कहता है, but to all who did receive him. जितनों ने भी उसे ग्रहण किया. Who this him is? कौन है जिसे ग्रहण किया गया? He is Jesus Christ. यीशु मसीह. But to हालेलुया. all who did receive Jesus Christ, मैं कहना चाहूंगा जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, who believed in his name, जितनों यीशु के नाम पर ईमान लाया, विश्वास किया, whom Jesus Christ gave the right to become children of God. उनको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया. Hallelujah. Hallelujah. The one who continues
honestly believe on God the Father in Christ Jesus. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया। Hallelujah. Hallelujah. Yes, a day when the day one believes on Jesus, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता he है, or she चाहे वो लड़का हो या लड़की, confess all their sins अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, and leave all their sin अपने पापों को त्याग देता and है accept Jesus Christ as his or her personal Lord and और Savior. पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता ग्रहण करता है। The Bible says बाइबल बताती है exactly at that उसी moment, क्षण से Jesus himself प्रभु यीशु मसीह खुद give a right to him or her to be a children of God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक उस व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि वो परमेश्वर पिता की संतान बन जाए। How beautiful assurance we कितनी have. सुंदर और धन्य निश्चय की बात Oh, what a blessed assurance we कितना have धन्य आशा है हमारे पास that we all who have accepted Jesus Christ as our personal Lord and कि Savior, हम में से प्रत्येक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धार करता ग्रहण किया, we have become the children of God the Father. हम तो उस जीवित परमेश्वर पिता की संतान है प्रभु यीशु मसीह I में। want to encourage you this morning, dear मैं people सुबह of के समय God. आज आपको उत्साहित करते हुए ये कहना चाहता हूँ, Maybe you do not have your earthly father. हो सकता है आपके पास आपके संसारिक पिता आज ना हो, Maybe you have even not seen your earthly हो father. सकता है कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने संसारिक पिता को देखा ही ना हो, Or it may be fathers have forsaken their children. और हो सकता है कि आप त्यागे गए हो अपने पिता के This द्वारा। morning we have a good news for you. आज इस सुबह के समय हमारे पास आपके लिए शुभ संदेश है। Jesus Christ gives us right to become children of God. तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अधिकार देते हैं कि हम उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की संतान बन जाएं And we can call God the Father our own और Father. उस महान परमेश्वर को हम अब्बा पिता कह के, हमारा पिता कह के पुकार सकते How beautiful assurance we हैं। have ओ in कितनी Christ. सुंदर आशा आपके पास मेरे पास है। Hallelujah. Hallelujah. Everyone who receives Christ Jesus as his or her personal Lord and Savior, हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता, व्यक्तिगत प्रभु उद्धार करता ग्रहण किया है, become the children of God. वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. With this word of encouragement, dear people of तो आज God, इस उत्साह के वचन के साथ let's go into the main sermon. आइए हम आने वाले संदेश की ओर The जाएंगे। main sermon for you. आने वाला आज का जो मन्ना है, आप एक संदेश है उसकी ओर जाएंगे। And I firmly believe और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ that today once again God the Father, He is going to talk with you. निश्चय ही आज एक बार फिर से प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे और बातचीत I करेंगे। firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता हूँ that you will be touched by the mighty hands of God Almighty. खुदावन के उन सामर्थी हाथों के द्वारा आप स्पर्श किए The जाएंगे। Holy Spirit will touch you. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेंगे। You will never be the same again. आप दोबारा वैसे नहीं होंगे जैसे आज आप हैं। God is going to transform you from inside out. परमेश्वर निश्चय आपको आंतरिक रीति से लेके बाहर तक बदल देंगे। You will be strengthened today. आप निश्चय प्रभु में बलवान किए जाएंगे। So that's why और इसलिए I would like to encourage each one of you. हर एक को उत्साहित करना चाहूंगा। Get excited and be ready with your Bibles. अपनी बाइबल को लेकर, पवित्र शास्त्र को लेकर आज के वचन के लिए तैयार रहिए। Because God Almighty, the Abba Father, He is ready to talk with you. कि निश्चय ही आज वो खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपके पास आए हैं कि आपसे बात करें। But before we go into the main और sermon, इससे पहले कि हम आगे जाएं, let's pray for the Word of God. ये वचन के लिए दुआ करें। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं। And Lord, we pray for the word that you have given this morning for thy children. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो आज आपने अपनी संतानों के लिए यहाँ दिया। Father, we pray that every one of thy children, as they are ready with their Bibles to hear from you, प्रभु हर एक लोग तैयार हैं आज इस वचन को सुनने के लिए, अपनी बाइबल को लेके वो प्रभु उत्साहित हैं। bless them, Lord. हर एक को आशीषित करिए। Give them grace upon grace. हर एक पर अपना अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलते जाइए। I पिता। pray their hearts be ready to receive the seed of God's word. प्रभु हर एक के हृदय तैयार पाए जाएं कि वचन रूपी बीज इनके हृदय में बोया And जाए। I pray that as they're going to hear God's word, और जैसे प्रभु आपके वचन को ये सुनेंगे, help them
help them to believe and live accordingly. प्रभु मदद करिएगा कि उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन जाएं। In Jesus' sweet name we परमेश्वर के pray. मीठे नाम से दुआ करें। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise thee the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise thee the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good, my dear people of मेरे God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर भला परमेश्वर है। Hallelujah. I Hallelujah. would like to draw your attention this morning from the book of Galatians chapter 2 and verse 20. और आज की सुबह हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में खोल लीजिए गलातियों की पत्री उसका अध्याय 2 This is going to be the key verse for this sermon. और इस संदेश का जो कुंजी का वचन रहेगा वो यही रहेगा। So let us read from the book of Galatians chapter 2 verse 20. और गलातियों की पत्री उसका अध्याय 2 और उसके वचन 20 से हम पढ़ने जा And रहे it's written हैं। here like this. और यहाँ पे यूं लिखा है, I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. और यहाँ पे लिखा है, हम पढ़ रहे हैं गलातियों की पत्री उसका अध्याय 2 और उसके वचन 20 में से। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I have been crucified with Christ. लिखा है कि मैं मसीह के साथ उस क्रूस पर लटका दिया गया। No longer I, but Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। And that life that I have today, और लिखा है जो जीवन में जी रहा हूं, it's not my own life. ये मेरे स्वयं का जीवन नहीं It's है, not my life. ये मेरा जीवन नहीं It है, is a life that I have in the Son of God. और ये वो जीवन है जो जीवन मुझे परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त हुआ Who है, loved me जिसने मुझसे प्रेम रखा and gave himself for me. और जिसने मेरी खातिर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। Hallelujah. Do you believe हालेलुया। this, my dear people of क्या God? आप इस बात पे विश्वास करते हैं मेरे If प्रिय लोगों? you say that yes, I am a Christian and I'm born again and Jesus Christ is my Lord and my Savior, यदि आप कहते हैं मैं एक मसीही हूं और मैं नया जन्म पाया हूं, एक मसीही हूं, प्रभु यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है, then the Holy Spirit is reminding you this morning about your true identity. तो यहां पे आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको मसीह यीशु में आपके स्वयं की वास्तविक पहचान को बता रहे हैं। And this is the key verse for it. और ये है उसका कुंजी का वचन आज First का। thing that you and me we should remember each and every day is that no longer I but Christ lives in me. हम एक मसीही होने के नाते प्रतिदिन हमें इस बात को स्मरण रखना है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। Even though I am in this body, यद्यपि हम इस शरीर में तो हैं, breathing every day प्रतिदिन हम श्वास ले रहे by हैं the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से, But actually we are living, we are alive in Jesus alone. परंतु वास्तविकता ये है कि हम मसीह यीशु के उस जीवन को जी रहे हैं। Oh, we are living His life. हम उसके जीवन को जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And because He loved us first. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम रखा, Jesus loved us and He gave Himself for us. यद्यपि यीशु ने हमसे भी सबसे पहले प्रेम रखा And- और अपने आप को हमारी खातिर दे दिया। And the Bible says that we are now new creation in Jesus. और कलाम हमें इस बात को बताता है कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए। Yes, everything that was in our past, every old things have passed away. हमारे जीवन के जितने भी अतीत के काम थे, बुरे विचार और पाप अभिलाषाएं, न पुराना जीवन, वो सब कुछ बीत गया। Yes, I am a new creation in अब Jesus. मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। So you must know that what is your true identity in Jesus. तो मसीही होने के नाते आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह में आपकी वास्तविक पहचान क्या है। The title of today's sermon is और आज के संदेश का जो शीर्षक है, Who I am in Christ is amazing. मसीह यीशु में मैं जो हूं वो बहुत ही अद्भुत I would है। like to repeat it for you. फिर से मैं आपके लिए इस बात को दोहराऊं, Who I am
in Christ is amazing. मसीह यीशु में मैं जो हूँ वो बहुत अद्भुत है। Hallelujah. Hallelujah. See, in the midst of many voices in our heads, and हमारे मस्तिष्क में नाना प्रकार के भिन्न भिन्न आवाज आते there हैं are so many different tags that people gives you, और कई बार लोग भी आपका नाम धरते हैं and that wage war against your true identity every day. और प्रतिदिन नाना प्रकार की ऐसी बातें जो मसीह यीशु में आपकी पहचान है उसके विरोध में लड़ाई को लड़ते We हैं। must know that we have an enemy, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारा एक शत्रु है and that defeated enemy, और वो हारा हुआ जो शत्रु है he is constantly trying to just suppress you to forget your true identity in Christ. वो हारा वो शत्रु नित्य इस प्रयास में रहता है कि आपके ऊपर में ऐसे कष्टों को डाले, ऐसे संकटों को और दबाव को डाले जिससे आप अपने उस वास्तविक पहचान को जो मसीह यीशु में है उसको आप भूल The जाएं। defeated devil is going to do anything and everything possible so that you can lose your sight towards your true identity in Christ. वो हारा हुआ जो शत्रु है वो अपने भरसक प्रयास में रहता है कि आपके जहन से और आपके लक्ष्य से, आपके दृष्टि से उस बात को हटा दे कि आप मसीह यीशु में कौन कौन सी पहचान को रखते हैं। So it is important for each one of us as a children of God, as Christians, as believers, तो विश्वासी होने के नाते और एक मसीही होने के नाते और परमेश्वर पिता के संतान होने के नाते we have to remind ourselves daily that who I am in Christ is amazing. हमें अपने आप को प्रतिदिन इस बात को स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि मसीह यीशु में मेरी वास्तविक पहचान क्या है। See, my true identity is not coming from this world. मेरी जो वास्तविक पहचान जो मसीह यीशु में है वो इस संसार से नहीं आती। My identity does not lie on my mistakes. मेरी गलतियों पर मेरी पहचान आधारित नहीं My है। identity does not lie in my failures. मेरी असफलताओं के द्वारा मेरी पहचान नहीं My होती। identity does not lie on my struggles. मेरे नाना प्रकार के संघर्षों के द्वारा मेरी पहचान नहीं My होती। identity does not lie on my guilt or shame. मेरे दोष भाव या मेरी शर्मिंदगी के द्वारा या अनुसार मेरी पहचान नहीं होती। My identity does not lie on my weaknesses as well. और मेरी कमजोरियों के अनुसार भी मेरी पहचान नहीं होती। My identity does not lie on my outer appearance. और मैं बाहरी रूप से कैसा दिखता हूं या कैसी दिखती हूं इसके अनुसार भी मेरी ये पहचान नहीं होती। My identity even does not lie upon my relationship. जिस पहचान के विषय में हम बात कर रहे हैं ये हमारे संबंधों पर भी आधारित नहीं है। Or my identity does not lies on the tags and the labels that my haters are giving me. और मेरी निंदा करने वाले जो मुझे नाना प्रकार के नामों से पुकारते हैं उनके अनुसार भी या उनके द्वारा भी मेरी पहचान नहीं है। My identity does not lie upon what my thoughts talks about me. और मेरे स्वयं के विचार जो मेरे विषय में कई बार आते हैं वो भी मेरी वास्तविक पहचान नहीं But है। my true identity lies in Christ and Christ alone forever. परंतु मेरी जो वास्तविक पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में उसके द्वारा ही है। My identity is what the word of God says who I am. मेरा पहचान वास्तविकता में वो है जो वचन जो कलाम बताता है कि मैं मसीह यीशु में कौन हूं। And the Bible clearly tells me और this, बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है that my identity in Christ is amazing. It is wonderful. मेरी पहचान जो मसीह यीशु में है वो अद्भुत है। And who Christ is in me is the real story of my life. और मसीह यीशु जो मुझ में है ये मेरे जीवन की वास्तविक कहानी है। I want to just reverse this scripture again. I want to just repeat this scripture for someone again. एक बार फिर से इस कलाम को मैं किसी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। Who Christ is in me मसीह यीशु जो मुझ में है, is the real story of your life. मसीह यीशु जो आप में है वही आपके जीवन की वास्तविक कहानी है। Hallelujah. Hallelujah. The story is not going to be written by any other man in this world. इस संसार में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके जीवन की कहानी नहीं लिखी जा रही है। Oh, because you are no longer live according to your flesh. और वचन के मुताबिक आप अपने शरीर के अनुसार आप अब जीवन नहीं जी रहे You हैं। are no longer alive, but Jesus
is alive in you. परंतु वचन के अनुसार अब आप जीवित नहीं रहे, परंतु मसीह यीशु आप में जीवित हैं। No longer I, but Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित See, है। what is the meaning of identity? एक पहचान जो शब्द है, इसका तात्पर्य क्या If you होता will है? see its definition, यदि आप पहचान जो शब्द है उसकी परिभाषा को देखें, it means इसका मतलब ये a है sense of belongingness. एक ऐसी दशा जहां पे आप अपने आप को किसी से संबंधित पाते हैं। A sense of self-address. एक ऐसी दशा जहां पे आपकी मनोदशा ऐसी होती कि हाँ, मैं किसी बात से मैं परिचित हूं। My identity answers all my questions like who I am, what is the aim of my life, whom I belong to, why I am alive. और मेरी जो पहचान है इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देती है जो सामान्य तौर पे हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं कहां जा रहा हूं। If in easy words I'll say identity is going to answer all your questions that who and what a person is. और पहचान जो शब्द है उसका सर्वसाधारण तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति कौन है, उसकी ये पहचान जो है वो उसकी परिभाषा देती है। And why it is important, it is necessary for each human being to know their personal identity. और ये क्यों जरूरी है हर एक मनुष्य के लिए अपने स्वयं की पहचान को जानना? Because when you know who you are, क्योंकि जब आप इस बात को जानते हैं कि आप वास्तविकता में कौन it हैं, gives you a clear picture तो ये आपको एक स्पष्ट एक पिक्चर देती है about yourself स्वयं आपके बारे में and about what you're going to do. और उसके विषय में कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले And it हैं। gives you a confidence to live your life. और ये पहचान ही आपको एक आत्मविश्वास देती है कि उन उद्देश्य को आप पूरा करें। And your identity, my dear people of और God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी जो पहचान है it lies only and only in Christ Jesus. वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में और उसके द्वारा ही है। Let's see what the Bible says about our identity. आइए हम बाइबल से देखेंगे कि कलाम हमारी पहचान के विषय में क्या कहता We'll है। read from the book of 1 John chapter 3 and verse 2. यदि आप पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 2 को, It declares that I am a child of God. वहां लिखा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। So what is your identity? तो आपकी पहचान क्या हुई? According to this scripture, इस वचन के मुताबिक you must know that you are not an orphan. आपको इस बात को समझ लेना है कि आप इस संसार में अनाथ नहीं हैं। You're not alone. आप अकेले नहीं हैं। You have a heavenly Father. आपका एक स्वर्गीय पिता है And He is declaring it to you. और वो आपको आज की सुबह इस बात को उद्घोषित कर रहे That हैं my dear beloved son or my dear beloved daughter, कि मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, you are my beloved child. तू मेरे प्रिय संतान है And this is your identity. और यही आपकी वास्तविक पहचान है। You must know that you are a beloved child of God. आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Gospel of John chapter 15 verse 9 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार में से अध्याय 15 और उसके वचन 9 को यदि आप it पढ़ें, says, I am deeply loved by God. लिखा है कि मैं परमेश्वर के द्वारा अति प्रेम किया गया The book हूं। of Romans chapter 1 verse 7, रोमियो की पत्री अध्याय 1 वचन 7 के अनुसार again the word of God declares that I am deeply loved by God. वहां पे फिर से कलाम इस बात को उल्लेखित करता है कि मैं परम पिता परमेश्वर के द्वारा अति प्रेम किया गया हूं। John 3:16 we all know. हम सब जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 We को, all are so deeply loved by God that He gave us His only begotten Son. हमें से प्रत्येक तमाम मानव जाति परमेश्वर पिता के द्वारा अति प्रेम किए गए कि उसने अपना एक लौता बेटा भी हमारी खातिर दे दिया। So if you are thinking right now that you're unloved, यदि आप आज वर्तमान में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई प्रेम नहीं करता, or you're thinking that you're alone, nobody cares about you, और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी नहीं है जो आपकी परवाह करे, then that the enemy is trying to just take you away from your true identity. तो आप इस बात को जान लीजिए ये शैतान का जाल है कि वो आपको आपकी वास्तविक पहचान जो मसीह यीशु में है उससे कहीं और लेकर जाना This चाह रहा is है। not the truth of your life. ये आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। As a child of God, परमेश्वर के संतान होने के नाते you are deeply
loved by God. आप परमेश्वर पिता के द्वारा अति प्रेम किए गए हैं। Yes, Father God loves you, my dear brother. हाँ मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्यार रखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Gospel of John chapter 15 verse 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसके वचन 15 के अनुसार Yes, the word of God declares that I am a friend of Jesus. लिखा है कलाम में कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह का मित्र हूँ। Yes, Jesus is not only our Lord and our Savior. हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता ही मात्र नहीं है, Oh, he is also our friend. वो तो हमारे मित्र भी हैं, Our best friend. एक सर्वोत्तम मित्र। Oh, with whom you can share any of your secrets. और उस मित्र के साथ में आप अपनी तमाम बातों को बांट सकते Oh, you हैं। can share every emotions of your heart freely to him. आप अपने मन की भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह जो आपको उत्तम मित्र है उसके साथ में बांट सकते Because हैं, he is a true friend. क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र He will है। never ditch you. He will never deceive you. He will never reject you. वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको तिरस्कृत नहीं करेगा, कभी भी आपको नकारेगा नहीं। So if you're thinking that you don't have no friends and you feel lonely all the यदि time, आप ऐसा सोचते हैं कि संसार में आपका कोई मित्र नहीं है और हर समय आप अपने आप को अकेला पाते हैं, oh, Jesus is there for you. याद रखिए यीशु मसीह आपके लिए हैं। Jesus is there for you, waiting for you to come near to him so that he can become your best friend. यीशु मसीह उपलब्ध हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं कि आपके वो उत्तम मित्र बन जाएं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The book of Romans chapter 5 verse 1 declares रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 1 इस बात को उल्लेखित करता है, that I have been justified by Christ. मैं तो मसीह के साथ धर्मी ठहरा दिया I've गया been हूँ। justified by his precious and holy blood. मैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया हूँ। See, you are telling that I have been a Christian since long. और आप शायद ऐसा कह रहे होंगे कि मैं तो लंबे अरसे से एक ईसाई जीवन को जी रहा Or maybe हूँ you are going to church from decades. और दशकों से मैं कलीसिया में आता जाता हूँ, But still, if your mentality or if your brain is telling you that you are a sinner, और यदि तो भी इतने वर्षों तक कलीसिया में जाने के बाद में, मसीह कहलाने के बाद में भी यदि आपका दिमाग आपको ये कहता है कि तू आज भी एक पापी है, oh, it's very sad to know that the people, even the leaders, are declaring you as sinners. और ये बहुत दुखद है जानना कि कलीसिया में कई अगुवे भी ऐसे लोगों को पापी घोषित कर I रहे want हैं। to tell you that is not your true identity. That is a false identity that enemy is creating in your मैं life. आपको इस बात को बता दूं, आपकी पहचान ये नहीं है, ये तो वो हारवे शत्रु के द्वारा लाया गया एक छलावा है। आपकी जो वास्तविक पहचान है वो मसीह यीशु में है। Romans 5:1 is declaring that now you have been justified in Christ. और रोमियो की पत्री अध्याय 5 और उसके वचन 1 के अनुसार जो हमें बताता है कि आप मसीह यीशु में धर्मी ठहरा दिए गए See हैं। what the word of God says in Colossians chapter 1 verse 13 and 14. कुलुस्सियों की पत्री उसका अध्याय 1 वचन 13 और 14 को यदि आप It पढ़ें, says that all my sins are forgiven in Christ. लिखा है कि मसीह यीशु में मेरे तमाम पापों से मुझे क्षमा प्राप्त हो चुकी है। Ephesians 1:7 says, इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 1 वचन 7 कहता it है, says, I am forgiven in Jesus. मैं मसीह यीशु में क्षमा कर दिया गया So हूँ। if you are in Jesus, तो यदि आप मसीह यीशु में आज वर्तमान में हैं, that means you are justified, you are forgiven from all your sins of past, present and future. तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के तमाम पापों से आपको क्षमा प्राप्त हो चुकी You है। are no more a sinner. आप अब पापी नहीं रहे। Why are you going to accept this kind of tax in your life that you are a sinner? आप अपने जीवन में इस प्रकार के नाम धराई को क्यों स्वीकार कर रहे हैं जब लोग आपको कहते हैं कि आप पापी हैं? Oh, you must know who you are in Christ. आपको ये जानना जरूरी है कि मसीह यीशु में आप कौन If हैं। no longer I but Christ lives in me, मसीह यीशु मैं नहीं परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। if this is the truth of your life, यदि ये आपके जीवन की सच्चाई then है there is no place of any sin in your life. तो आपके जीवन में पाप का फिर कोई स्थान नहीं रहेगा, Because sin and Christ cannot be together in you. क्योंकि मसीह यीशु और पाप एक साथ आपके अंदर नहीं रह सकते। If you know who you are, यदि आप इस बात को जानते हैं कि आप मसीह यीशु में कौन
The है, enemy can never deceive you. तो वो हारा हुआ शैतान आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। Know the word of God. वचन को जाने। If you know the word, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, then only you will know who you are. तभी आप इस बात को जान पाएंगे कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है। See, the word of God says in the same book of Colossians chapter 2 verse 9 and 10. कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और उसके वचन 9 और 10 को यदि आप पढ़ें तो यहाँ पे कलाम कहता है, It says, I am whole and I'm complete in Christ. मैं मसीह यीशु में परिपूर्ण और सिद्ध कर दिया गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. In Christ alone. मसीह यीशु में मात्र We have the fullness in everything. हमारे पास में जीवन की भरपूरी है। Hallelujah. Hallelujah. I am not complete in myself. मैं अपने आप के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ हूँ। Even though as partners, as husband and wives, the people says it like a thought that we're completing each other. और पति पत्नी होने के नाते भी कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ये दोनों एक दूसरे में सिद्ध हो गए, परिपूर्ण हो But गए। the fact is, परंतु वास्तविकता ये है, no one can make you whole except Jesus. आपको यीशु मसीह के अलावा और कोई भी सिद्ध या परिपूर्ण नहीं कर सकता। Only Jesus completes me. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझको सिद्ध और परिपूर्ण करते हैं। Only Jesus makes me whole. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मुझको सारी बातों में परिपूर्णता में लिए चलते So हैं, I am whole in Jesus. ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होती जाऊं। Hallelujah. Hallelujah. The book of Romans chapter 8 verse 1 and 2 declares रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसके वचन 1 और 2 में यदि आप पढ़ें तो यहाँ पे वचन हमें इस बात को लेखित करता that I है, am free from all condemnation, it says. मैं अपने तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. There's no any condemnation over your life, my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप पर अब दंड की आज्ञा नहीं There's a है। beautiful song which says that I am a new creation and no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. और बहुत खूबसूरत एक गीत है जो कहता है कि अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Because now we are saved by faith through grace. क्योंकि हमारा जो उद्धार वो अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही हुआ है। Oh yes, Jesus' grace is sufficient for us. मसीह यीशु का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त His है। grace is sufficient for me to keep me away from all condemnation forever. परमेश्वर पिता का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं हर एक प्रकार के दंड और दोष भाव से बचाई जाऊं। So if the people are condemning you, यदि वर्तमान में लोग आपको किसी प्रकार से दोष लगा रहे हैं, or they are just trying to put you in the condemnation state, यदि आपको लोग किसी प्रकार के दंड के स्थान में लेकर जा रहे or हैं, if you're sick in your body, or if you're going through any challenges or problems in your life, and the people are coming and telling you that now you're condemned by God because you did that or did this. यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से, आर्थिक संकट से या किसी भी प्रकार की समस्या से क्यों ना गुजर रहे हों और इन समस्याओं को देखकर लोग शायद आपको इस बात को कह रहे हों कि आपने अतीत में या वर्तमान में किसी न किसी प्रकार का पाप किया है, इसीलिए इस प्रकार की समस्या से आप गुजर रहे हैं, That is a false label, the false identity that people or the enemy is trying to put upon you. यदि लोग ऐसा कह रहे हैं तो ये एक गलत बात है, ये गलत पहचान है, ये शत्रु के द्वारा लाया गया एक जाल है। Yes, because Bible does not say this. क्योंकि बाइबिल ऐसा नहीं बताती। Bible says now you're free, my dear beloved child, from all condemnation. Why? Because Jesus Christ has paid the price for you. बाइबिल बताती है मेरे प्रिय लोगों कि आपके ऊपर अब दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है, आप दोष भाव में जीवन नहीं बिता सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाया है। Jesus was condemned for us. प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दंडित हो गया। Do not forget the price that he has paid on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में जो कीमत चुकाया है उसको आप कभी भी मत भूलिए। If I am still condemned by God, यदि मैं आज वर्तमान में भी परमेश्वर के द्वारा दंडित हूं, ये that मैं means सोचता everything that Jesus has done on the cross of Calvary, his sacrifice is in vain. कहने का मतलब फिर ये हो रहा है सीधे शब्दों में कि मसीह यीशु ने जो कलवरी के क्रूस के ऊपर में कीमत चुकाई है वो व्यर्थ हो गया। So you are free from all condemnation. याद रखिए यीशु मसीह के
कीमत चुकाए जाने के द्वारा, उसके दंडित होने के द्वारा आपके ऊपर अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कुरिन्थियों अध्याय उसका 3 और वचन 16 के अनुसार You are God's temple. आप परमेश्वर पिता के मंदिर हैं। I'm God's temple. मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। What it means? इसका मतलब क्या है? That God dwells in me. कहने का मतलब यह है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह अब मेरे अंदर वास करते हैं। Jesus lives in me. यीशु मेरे अंदर रहता है। Again, go back to Galatians 2:20. No longer I, but Christ lives in फिर me. से आइए चलते हैं गलातियों 2:20 में यहाँ पे लिखा है, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। That means every moment, कहने का मतलब ये है कि हर एक क्षण, till the time I'm alive in this body, जब तक कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर में इस शरीर में जीवित हूँ, I'm alive as a temple of God. मैं परमेश्वर के मंदिर के समान जीवित हूँ। So I'm not seeking God anywhere else. तो मैं कहीं और परमेश्वर की तलाश नहीं करता। I am the temple of the Holy Ghost. मैं स्वयं परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। It doesn't mean that I'm telling you not to go to church or not to go to any fellowship. इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप किसी कलीसिया में ना जाएं, किसी संगति में ना जाएं। Church is important. Fellowship is very important. कलीसियाई संगति बहुत महत्वपूर्ण है। But we are talking here individually about you, that who you are in Christ is amazing. परंतु हम यहाँ पे व्यक्तिगत रीति से आपके विषय में बता रहे हैं कि मसीह यीशु में आपकी वास्तविक पहचान क्या है। That means God dwells in you. कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर स्वयं आपके भीतर वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। 1 Peter chapter 2 and verse 9 says, पहला पत्रस की पत्री यदि आप पढ़ें अध्याय 2 वचन 9 को, it says, in Christ I am chosen. और लिखा है मसीह यीशु में मैं चुना गया हूँ। I am a royal priesthood in Jesus. मैं मसीह यीशु में राजपद अधिकारी हूँ। Hallelujah. Hallelujah. A holy nation in Christ. लिखा है पवित्र एक नेशन हूँ मैं, And a God's special possession. और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हूँ मैं, His own possession. उसकी स्वयं के लोग हैं हम। Who you are in Christ आप कौन है मसीह यीशु में? is truly amazing. Actually, it's beyond amazing. ये तो अद्भुत एक शब्द जो आता है हिंदी का, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। See, 1 Peter 2:9 is declaring very clearly without any confusion here. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 स्पष्ट रीति से बिना किसी संदेह के इस बात को आपको और मुझको बताता है That you are chosen. कि आप चुने गए हैं। Chosen by whom? किसके द्वारा? God Himself. परमेश्वर के द्वारा ही आप चुने गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are a royal priesthood. आप तो राजपद अधिकारी हैं। You are a priest. आप तो याजक हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have all the right to come in the presence of God to worship Him. आपके पास में सर्वोच्च अधिकार है कि आप किसी भी समय परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। I also want to add one thing here. एक और बात मैं जोड़ूंगी, That you are a priest. If you are a priesthood, यदि आपका एक याजक पद है if you are knowing who you are in Jesus, और आप यदि जानते हैं कि आप मसीह यीशु में कौन then हैं, you must have all the right to take the Holy Communion. तो आपके पास में फिर सर्वोच्च अधिकार भी आ जाता है कि आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। See, people are keeping themselves away from the Holy Communion. और कुछ लोग जो आम विश्वासी हैं उनको उनकी पहचान को नहीं बताते हुए उनको प्रभु भोज से भी वंचित कर देते Do हैं। not depend on monthly Holy Communion that you get in your church. महीने दर महीने का जो प्रभु भोज में शामिल होना होता है उस पर ही आप निर्भर मत रहिए। It's good. ये तो अच्छा है, But you are a priest of Jesus, a God Almighty. परंतु वचन के अनुसार मसीह यीशु में आप परमेश्वर के याजक हैं। You have all the right as a child of God परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके पास में ये अधिकार है to take part in the Holy Communion every day with your family. कि आप अपने परिवार के साथ में प्रतिदिन प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। Defeated devil always wants each one of us to be away from this truth. और वो हारा वो शैतान ये भरसक प्रयास करता है कि में से प्रत्येक बाइबल की वास्तविकता से परे हम उससे दूर हो जाएं। So please make a note तो कृपया करके इस बात को आप लिख लीजिए that
you have all the right to partake in the Holy Communion by yourself as well. और आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु भोज में नित्य शामिल हो सकते Because हैं, He is my Lord and Savior. क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता It's है। my personal relationship with Him. मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है मसीह यीशु के I'm not साथ। depending on any pastor and leader alone मैं मात्र किसी अगुवे या पासबान के ही ऊपर मैं निर्भर to नहीं रह maintain सकता my relationship with my Lord. कि मैं प्रभु के साथ में अपने संबंध को बनाए रखने के लिए, उसको संतुलित मात्रा में बनाए रखने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर हूं। Jesus shed His blood for me, for forgiveness of my sins. यीशु मसीह ने मेरे व्यक्तिगत जीवन के पापों से मुझे आजाद करने के लिए उसने अपने स्वयं का लहू बहा दिया। It's very personal thing. ये तो बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है। This is an individual relationship with God. ये तो परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध की बात है। Who can stop me to partake in His holy and precious and most holy and most precious blood and flesh? तो कौन मुझे रोक सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र देह और उसके पवित्र लहू में प्रतिदिन शामिल ना हो The Word पाऊं? of God says, "I am the flesh of His flesh and I am the bones of His bones." कलाम कहता है मैं उसके शरीर का शरीर और उसके हड्डी का हड्डी हूं। I am His bride. मैं उसकी दुल्हन हूं। I am His church. मैं उसकी कलीसिया I am हूं। His temple. मैं उसका मंदिर हूं। I belong to Him. The Word of God says in the same 1 Peter chapter 2 verse 9 that I am God's own possession. लिखा है इसी पत्री में, पहला पत्रस अध्याय 2:9 में कि हम परमेश्वर के स्वयं की प्रजा हैं। निज प्रजा, उसकी His निज own प्रजा है, possession. उसके खुद के Hallelujah. लोग हैं। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 declares दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 इस बात को कहता that है, I am a new creation. मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि As I हूं। told you in the beginning, मैंने प्रारंभ में आपको बताया, all your past is now gone. आपका अतीत बीत चुका है। Every old thing has passed away. आपका अतीत बीत चुका If the है। people are still calling you with that labels of the things that you have done in your past or giving you tags accordingly, यदि आज भी वर्तमान में लोग आपके अतीत की बातों को स्मरण करके आपका नाम धराई कर रहे they're हैं, highly mistaken. तो वो गलत कर रहे They're हैं। wasting their time वो अपने समय की बर्बादी कर रहे because हैं, you no longer live in your past. क्योंकि अब आप अपने अतीत में नहीं जीते। In present, you live in Jesus. वर्तमान में आप यीशु मसीह में जीवित And हैं your future is glorious in Him. और मसीह यीशु में ही आपका जो भविष्य है वो उज्जवल है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The Word of God says in Romans chapter 8 verse 37. और कलाम कहता है रोमियो की पत्री उसका अध्याय 8 और उसके वचन 37 That में, in Christ Jesus I am more than a conqueror. मसीह यीशु में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus Christ is a triumphant lion of the tribe of Judah. क्योंकि यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र का वो सिंह He is है, a victor of victors. वो तो जयवंत से बढ़कर है। Oh, hallelujah. And He has made me more than conqueror. और यीशु मसीह ने ही मुझको जयवंत से बढ़कर बना दिया। So whatever storms you may be facing today, तो आज वर्तमान में आप किसी भी प्रकार के संकटों से, तूफानों से क्यों ना गुजरे, you must remember one thing daily. आपको इस बात को प्रतिदिन स्मरण रखने की आवश्यकता That my है, true identity is I am a conqueror. मैं मसीह यीशु में जो मेरी वास्तविक पहचान वो ये भी है कि मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर I'm हूँ। more than a conqueror in Jesus. यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। Let whatever come, अब कुछ भी आन दो, I'm going to overcome it in Jesus' मैं हर name. एक संकटों के ऊपर मैं यीशु के नाम से जयवंत से बढ़कर Oh, जीत even जाऊंगा। from the fiery furnace, I will come out alive and victorious. आग की भट्टी में से भी मैं जयवंत से बढ़कर बाहर निकल आऊंगा। Even if the Red Sea is in front of me right मेरे now, सामने लाल समुद्र भी क्यों ना हो, I'm going to cross it over in the name of Jesus victoriously. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस लाल समुद्र के भी पार लग जाऊंगा। Let any mountains come and hurdle my life. मेरे जीवन में नाना प्रकार के पर्वत रुकावट के समान भी क्यों ना आ In जाएं, Jesus' name, I'm going to destroy it and I'm going to move ahead यीशु victoriously. मसीह के नाम से मैं उन पर्वतों को ढा दूंगा और यीशु के नाम से आगे Because बढ़ूंगा, I know who I am in Jesus. क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह में मैं कौन हूं। I'm not a failure, Satan.
शैतान मैं हारा हुआ नहीं हूं, Oh, shut his mouth. उसके मुंह को बंद कर दीजिए। Resist the devil by the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वचन के द्वारा आप शैतान का सामना And he करिए will flee away. और वो आपके सामने से भाग And जाएगा you will walk victoriously और continually. आप नित्य मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर जीवन को जिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 also declares this. और यदि आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसके वचन 57 को पढ़ेंगे, In Christ I am victorious. लिखा है मसीह यीशु में मैं जीवन से In बढ़कर, Christ I am victorious. मसीह यीशु में मैं जीवन से भी बढ़कर हूं। Hallelujah. Hallelujah. Philippians 4:19 says, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 19 को यदि आप it पढ़ें, says that I am always provided by God. मेरा प्रबंध हर समय परमेश्वर की ओर से आता I'm है, always helped by God. हमेशा मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती I'm है, always supplied by God. हर समय मैं परमेश्वर के द्वारा उत्तम प्रबंध पाता हूँ। He is always there to help me out. परमेश्वर हमेशा मेरे लिए उपलब्ध है कि मेरी सहायता वो The करे। psalmist says that my help comes from the Lord who made heaven and the earth. भजन का लिखने वाला कहता है कि मेरी सहायता तो परमेश्वर पिता की ओर से आती है, Oh, जिसने yes. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, Because he is the Jehovah Jireh. क्योंकि वो यहोवा ईरे है, He sees वो देखता है and he provides. और वो पूर्ति करता He है, provides. वो पूर्ति करता And है। the word of God says that our God is going to provide all our needs और according to his riches and glory in Christ Jesus. कलाम कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मसीह यीशु में अपने महिमामय धन के अनुसार मेरी सारी घटी को पूरी करेगा। In Christ. मसीह यीशु में, I am in Christ. मैं यीशु मसीह में हूँ So I am supplied in Christ. और इसीलिए मेरा प्रबंध भी प्रभु यीशु मसीह में मुझ तक I am पहुंचता है। supplied by him alone. मैं यीशु मसीह में ही पूर्ति पाता हूँ, He is our वो help. मेरी मदद है। Not only financially I'm talking about. मैं सिर्फ आर्थिक मदद की ही बात नहीं कर रही हूँ, He helps us financially. वो तो हमको आर्थिक तौर पे भी मदद करता He है, helps us emotionally. वो हमको भावनात्मक तौर पे भी सहायता He देता helps है, us mentally. वो हमको मानसिक तौर पे भी बल देता He है, helps us physically. वो हमको शारीरिक तौर पे भी शक्ति देता है। All the areas of my life. हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में I'm helped by God in Christ. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर पिता के द्वारा मदद किया गया हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That's why he has sent his own spirit as a greatest helper for और us. इसीलिए तो उसने अपने स्वयं की आत्मा को हमारा सर्वोत्तम मददगार करके नियुक्त किया है। That's why the Holy Spirit lives in me. इसलिए पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, So that I should always be helped by इसलिए God. मैं हर समय परमेश्वर के द्वारा मदद पाऊं। Amen. आमेन। So if you don't know who you are in यदि Christ, आप इस बात को नहीं जानते कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, I want to tell you it is very dangerous. तो मैं आपको बता दूं ये बहुत खतरनाक स्थिति The होगी। enemy can use this against you anytime, anywhere to destroy your life. वो हारा हुआ शैतान इस अज्ञानता को आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा, आपको नाश करने के लिए। And that's why the Bible says, इसीलिए कलाम में लिखा है, do not neglect wisdom. बुद्धि जो होए उसको आप नकारे ना, Do not neglect the word of God. परमेश्वर के वचन को तिरस्कृत ना करें। The word of God says, because the people are lacking my knowledge, they are perishing. कलाम में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो That गए। means people even don't know who they are and they're walking in their false identity and they're going to hell and perishing their life. कहने का मतलब यह है कि लोग मसीह यीशु में अपने वास्तविक पहचान को ना जानते हुए गलत पहचान में चले गए और इसीलिए वो नाश हो गए। So do not allow the Satan. तो इसलिए उस हारे हुए शैतान को अनुमति मत Yes, दीजिए। defeated Satan. वो हारा वो शैतान है, To oppress you वो आपको दबाने का प्रयास with करता the है, false identity. नाना प्रकार के गलत पहचान को आपको Do देकर। not allow him to damage your destiny and your life. उस हारे हुए शैतान को अनुमति मत दे कि वो आपके आने वाली मंजिल को नाश करे। He tries to keep us, all the Christians, away from our true identity in वो Christ. हारा हुआ शैतान हर एक मसीहियों को जिनका प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता और प्रभु है, उनको अपने वास्तविक पहचान से वो अलग रखने का प्रयास करता And the है। different enemy tries to make you feel that you are unworthy, unloved, useless, and a sinner. वो हारा हुआ शैतान भरसक प्रयास में रहता है कि आपको बार बार इस बात को बताएं कि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तुम अयोग्य हो, तुम अनुपयोगी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
Oh, when this thought and this kind of false identity traps you, और जब इस प्रकार की गलत बात, गलत पहचान आपके जहन में आती है, you know what will start happening in your life? तो मालूम है आपके जीवन में फिर क्या होता है? You will not be able to trust God anymore. आप उसके बाद फिर परमेश्वर पर दोबारा कभी भी भरोसा नहीं रख You will सकते start हैं। doubting God's word. आप परमेश्वर के वचन पर भी संदेह कर बैठते हैं, It will take you away from the plan of God for your life. और ये गलत पहचान जो होगी, जो शैतान देगा, वो आपको परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी योजनाओं से भी अलग कर देगा। False identity will kill your dreams. और वो गलत पहचान आपके स्वप्न और दर्शनों को भी खत्म कर देगी। It will completely vanish your godly understanding. परमेश्वर के विषय में जो ईश्वरी समझ है, उसको वो समाप्त कर देगी। Oh, the false identity is going to completely vanish the clarity of God's goodness in your life. जो गलत पहचान जो शैतान आपके जहन में डालेगा, वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शनों, उसकी योजनाओं और उसके द्वारा दी गई पहचान को नष्ट कर देगी। So what you have to do, my dear friends? तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको क्या करना We होगा? want to tell you this morning. आज सुबह हम आपको बताते हैं, Get into God's word. परमेश्वर के वचन में आ जाइए। Yes, get into God's word परमेश्वर के कलाम को पढ़िए and begin to know who God is for. और इस बात को जानने का प्रयास करिए कि परमेश्वर पिता कौन And then है, try to find out who you are in Jesus. और उसके बाद कलाम में तलाशिए कि आप यीशु मसीह में कौन है। What is your worth and value in Christ? मसीह यीशु में आपकी उपयोगिता और आपकी वैल्यू क्या है? What is your impact in this world? इस संसार में मसीह यीशु में रहकर आप कैसा प्रभाव छोड़ What सकते is your हैं? power in Jesus? मसीह यीशु में आपकी कौन कौन सी सामर्थ्य और अधिकार हैं? What is your authority in Jesus? मसीह यीशु में जो आपको अधिकार दे दिए गए हैं, What influence you carry as being the temple of God, carrying the Spirit of God in you? परमेश्वर का मंदिर होने के नाते और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, उसमें जीवित रहने के द्वारा आपका बड़ा प्रभाव है। Every man and woman of God who is alive in Jesus. हर एक वो प्रभु के लोग जो यीशु मसीह में जीवित हैं, I want to tell you मैं आपको बताऊं, that you are an influential people. आप प्रभाव छोड़ने वाले लोग हैं। You are very powerful. आप बहुत सामर्थी You are हैं। full of glory of God. आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। Oh yes, you are called to shine. आप तो ज्योति के नाई चमकने के लिए बुलाए You गए are the हैं। salt of this world. आप इस संसार में नमक You हैं। are ambassador of the kingdom of God on this planet. आप इस पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर के राजदूत हैं। You have to understand it, and not only understand it but believe it. आपको इसे ना सिर्फ समझने की आवश्यकता है, परंतु इन वचनों पे विश्वास करने की भी आवश्यकता And when है। you will know it and believe it and start living your life और accordingly, जब आप इन वचनों को जानते हैं, अपनी पहचान को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, oh, you are going to become the commanders of God. तो आप परमेश्वर के योद्धा बन जाते हैं। Oh, you are going to fight your battles and you're going to win it every time. और हर बार आप अपने युद्ध को लड़ते हैं विश्वास के जरिए और उस पे जय हासिल करते And हैं। when you know the defeated enemy, he will know it that now you are completely aware about your identity in Christ और Jesus. जब वो हार व शैतान इस बात को जान जाता है कि आप यीशु मसीह में जो आपकी पहचान है उसको आप जान चुके हैं, Oh, he will start being scared of you. वो हार व शैतान आपको देखकर थरथराएगा। Oh, he will flee away from your life and from your family and from everywhere you will go. जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां से वो भाग खड़ा होगा, आपके परिवार और आपको देखकर वो थरथराएगा। Hallelujah. Hallelujah. The whole hell will be shaken by you. आपको देखकर पूरा नरक हिल जाएगा, Because you are no longer alive in the flesh, but you're alive in Jesus क्योंकि now. अब आप जीवित नहीं रहे परंतु मसीह यीशु आप में जीवित है। You are called to be an influential person. आप तो एक प्रभावी व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए You're हैं। called to be a blessing for the people. आप तो लोगों के लिए आशीष होने के लिए बुलाए गए You're हैं। called to create a history in this earth. आप इस पृथ्वी के ऊपर में इतिहास रचने के लिए बुलाए गए So हैं। please तो इसलिए कृपया करके know your true identity. अपनी वास्तविक पहचान जो मसीह यीशु में है उसको पहचानिए। Your identity in Christ is amazing. आपकी पहचान जो मसीह यीशु में है वो अद्भुत It's है। more than amazing. अद्भुत शब्द से भी बढ़कर है। Your identity in Christ is glorious. वो जो पहचान है मसीह यीशु में आपकी वो महिमामय है। And above all, और इन सारी बातों से बढ़कर Christ
in me मसीह यीशु मुझ में है, is the real story. वो मेरी वास्तविक कहानी है। Hallelujah. Hallelujah. He is the Almighty. वो सर्वशक्तिमान He है, is the El Shaddai. वो सर्वशक्तिमान He है, is the Jehovah वो Rapha. यहोवा राफा He है, is the Jehovah वो Jireh. यहोवा ईरे He is the है, वो Emmanuel. इमैनुएल परमेश्वर Oh, है, hallelujah. He is Jesus. वो यीशु And He है is in you. और वो आप में है And you are in Him. और आप यीशु में And हैं, that is all what matters in our life. और हमारे जीवन में यही बात सबसे ज्यादा मायने Do रखती not है। forget the key verse of today. इसलिए आज के संदेश का जो कुंजी का वचन है उसको ना भूलें। Galatians chapter 2 verse 20. गलातियों की पत्री उसका अध्याय 2 वचन 20। No longer I, अब मैं जीवित नहीं रहा, but Christ lives in me. परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। And now the life that I'm living in, अब जो जीवन मैं इस पृथ्वी में जी रहा now हूँ, the life that I'm having in this body, इस शरीर में जो मैं को जी रहा हूँ, it is by the faith that I have in the Son of God. और ये उस विश्वास के जरिए है जो मेरा विश्वास परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर The है। Son of God whose name is Jesus, who परमेश्वर का इकलौता बेटा जिसका नाम प्रभु यीशु है, gave up his life for me, जिसने मेरी खातिर अपने जीवन को दे दिया, who loved me so much जिसने मुझसे बेइंतहा प्रेम रखा, that even after he was knowing no sin, he became sin for me. और वो जो पाप से अज्ञात था वो मेरी खातिर पाप ठहरा He दिया became गया, cursed for me. वो मेरी खातिर शापित बना। Oh, he took all my sickness and illness and all infirmities on his body. और उसने मेरी तमाम प्रकार की बीमारियों को, शाप को, निंदाओं को अपने ऊपर में अपने शरीर में ले लिया। By his stripes I'm healed. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। Oh, he shed his most precious blood on the cross of Calvary for me. उसने अपने निष्कलंक निर्दोष सर्व सामर्थ्य लहू को मेरी खातिर कलवरी के क्रूस के ऊपर में से बह जाने And दिया। now I'm washed and cleansed by his blood. अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर शुद्ध, साफ और पाक हो I've गया। been justified by him. मैं उसके द्वारा धर्मी ठहरा I'm दिया गया, redeemed by him. उसके द्वारा छुड़ाया गया In हूँ। Christ now I have become the righteousness of God. Bible says. बाइबिल बताती है कि मसीह यीशु में अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया। I am God's own people. अब मैं परमेश्वर का निज लोग हूँ। We are God's own possession. हम Bible says. बाइबिल बताती है हम परमेश्वर के निज लोग हैं, I'm God's beloved child. परमेश्वर की संतान हैं, I'm God's temple. हम परमेश्वर के मंदिर हैं, I'm a new creation. हम परमेश्वर में यीशु मसीह में नई सृष्टि By the हैं। people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय Do लोगों, not forget who you are in Christ. इसलिए इस बात को मत भूलिए कि आप यीशु मसीह में कौन हैं। Hallelujah. Hallelujah. So let us pray together. इसलिए आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, I believe that the Holy Spirit is going to talk to you and going to touch you right now. और हम इस बात को जानते हैं, विश्वास करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर पिता ने अपने वचनों के मार्फत आपसे बोला है, बातचीत किया है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए गए I would हैं। like to request Pastor Edwin to lead us in prayer. आइए हम आगे प्रार्थना में चलेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू प्रेयर राइट नाउ, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं मेरे प्रियो, डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, नो व्हाट हैज बीन प्रीच्ड हियर। जान रखिए कि किस बात का संदेश का प्रचार यहाँ किया गया है। This is something that is supernaturally God ordained time for each one of us. मैं विश्वास करता हूँ कि ये अलौकिक समय परमेश्वर की ओर से हम में से प्रत्येक के लिए नियुक्त किया गया है। That God has spoken His true words through us to कि you. परमेश्वर ने अपने वचनों को, उन सत्य को हम तक लाया है। This is the true words of God. ये परमेश्वर का सत्य वचन है। The identity that we have in Christ Jesus, it is irrevocable. ओ जो हमारी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में, वो कभी मिटने की नहीं। Nobody can snatch it from us. और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। The identity that we have in Christ Jesus, it is everlasting identity. ओ वो पहचान जो आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुई है, वो सदा के लिए है। Our situations cannot snatch it. ओ हमारी परिस्थितियां मेरी पहचान को बदल नहीं सकती। The people, those who are standing against us, they cannot remove or vanish our true identity that we have in Christ Jesus. जो पहचान हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है, उसे कोई भी व्यक्ति जो हमें हमारे विरोध में भी क्यों ना हो, उसे मिटा नहीं The सकता। defeated enemy cannot have that power to destroy our true identity that
that we have in Christ Jesus. हारा हुआ शैतान भी हमारी इस पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह में है वो कभी मिटा नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. We need to believe. Keep on believing on these words. ओ परमेश्वर के वचन पे नित्य विश्वास रखिए। Every day we need to remind ourselves. हर दिन हमें अपने आप को स्मरण दिलाना है। Every day you remind your children, your spouse about this. हर दिन अपने बच्चों को, अपनी पति, अपने पत्नी को इस बात का स्मरण कराते रहिए। Even your failure cannot change your true identity in Christ. आपकी असफलता भी आपकी पहचान को मिटा नहीं सकती जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिली Because है। Christ lives in क्योंकि you. यीशु मुझ में रहता है। Christ lives in us. यीशु मुझ में जीवित है। And who Christ is? कौन है यीशु? The one who not only died, ना केवल वो जो मारा गया, but who raised again third वो day. यीशु है जो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। The resurrected Christ lives in us. वो पुनरुत्थित यीशु मेरे अंदर जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. So I'm so much excited and blessed, by today's words. मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ हूँ और आशीषित हुआ हूँ जिस वचन के द्वारा। If you have been blessed अगर today, आप भी आशीषित हुए हैं, you can share this video to your friends and इस families. संदेश को आप अपने मित्रों, अपने प्रियों के साथ कृपया बांटें। By sharing this video to your friends and families, that will be your little contribution to this ministry. इस सेवा के लिए आप थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं इस वीडियो को आगे शेयर करके। So that every individual in this world, those who are just namesake Christians, ताकि वो लोग जो सिर्फ नामधारी मसीह हैं, don't know their true identity in Christ, जो यीशु मसीह में अपनी पहचान को ना जानते हुए जी रहे हैं, must know their true identity in Christ through this video. वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को जो यीशु में है जान सके। And who knows, today their hearts will be pricked. और हम नहीं जानते किस रीति से प्रभु का वचन उन्हें कायल करेगा, उनके हृदय छिदेंगे। Who knows, through this message their lives will be और transformed. बहुतों का जीवन बदल जाएगा। That's why, dear people of और God, इसलिए मेरे प्रियो, share these videos with as many people you can. आप कृपया करके इन वीडियोस को आगे शेयर And करिए God will reward और you. निश्चय प्रभु आपको God प्रतिफल will देंगे। surely reward you. निश्चय प्रतिफल देंगे। Father, in the name of Jesus Christ, we pray परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से हम खुदा बाप दुआ करते हैं, and bless thy children, आपके Lord. बच्चों पर आशीष बोलते हैं पिता। Father, as they have heard about the true identity that we have in Christ प्रभु Jesus. जब आज पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये वचन हमारे पास आया है कि हमारी असली पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, Lord, I pray that each one of thy children must believe and live their lives accordingly. प्रभु हर एक इस वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में विश्वास लाए और जिए। Father, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that their lives be transformed by these words. प्रभु हम दुआ करते हैं कि इनका जीवन इन वचनों के द्वारा तब्दील किया जाए। All their failures turns into success. प्रभु इनके जीवन के अनेक असफलताएं प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं सफलताओं में बदल Their जाए। sickness be gone right now in Jesus' प्रभु यीशु name. के नाम से हम बोलते हैं पिता हर बीमारी इन्हें छोड़ दे। Their financial crisis turns into abundance. यीशु के नाम में हर एक घटी आज बहुत तायत ने इनके जीवन में बदल दी जाए। Father, I pray and bless thy children, प्रभु हम Lord. प्रार्थना करके आपके लोगों पर आशीष बोलते हैं। We decree and declare bright and blessed future upon them. प्रभु यीशु के नाम से हम घोषित करते हैं कि इनका आने वाला भविष्य उज्जवल और आशीषित हो। Bless them, Lord. आशीष दीजिए खुदावन। We give you, Lord, all the glory and all the प्रभु honor. हमको सारा आदर महिमा और जलाल देते हैं खुदा। Thank you that this morning you have talked with धन्यवाद us इस सुबह आपने हमसे बोला खुदावन और बातचीत and की through us. और हमारे द्वारा। And that's why we give you glory. आपको सारा महिमा देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। In Jesus' sweet name we pray. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. 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 Now receive the blessings of God, dear people of आइए God. परमेश्वर की आशीषों को हम ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता तुम्हें आशीष है, तुम्हारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश तुम पर and चमकाए। be gracious to you. परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करे and give you his और हमें अपनी peace. शांति दे। In Jesus' sweet प्रभु यीशु name. मसीह के नाम से। Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. Oh, God is good God. परमेश्वर भला है। Thank you so very much that you people have joined with us this morning to hear the undiluted word of God. धन्यवाद देते हैं आप सबों का कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और आज इस सुबह हमारे साथ जुड़े परमेश्वर के वचनों को सुनने। Know that we are praying for you निश्चय जानिए हम आपके लिए दुआ करें and we need your prayers और as हमें भी well. आपकी दुआओं की आवश्यकता See you next week. है। आने वाले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात। May God richly bless प्रभु you. आपको बहुत आज से आशीष दे।